Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we are carrying on with this third chapter in history as we have completed 3 chapters in political science and 3 chapters in geography. So, it was the turn of the third chapter in history. One of the very interesting chapters, and children, it will give you an insight into the empire of the Delhi. How Delhi Empire and the Delhi Sultans have been the most important personalities in history, and how they have been dealing with the situations. How first we have to understand कि अभी पिछले chapter में last chapter what we have done, because when we are doing history we need to understand the previous chapters as well. The Delhi Sultans, how did they, लेकिन उसके पहले what we have done is कि river Kaveri Delta, ठीक है, large kingdom. Chola Empire was such a large kingdom. What we have studied, yes, we understood that Chola Empire and their administration and their people, some of the most powerful people in history. हमने ये भी देखा कि दिल्ली एज इट्स कैपिटल अभी तक हमको कहीं नजर नहीं आया. दिल्ली इज आवर कैपिटल नाउ, लेकिन इन द ओल्डन टाइम्स वेयर वाज दिल्ली? चोला के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है. Please understand that last chapter we read about the kingdoms in Kaveri River Delta. Kaveri River में के पास चोला किंगडम was situated and how चोला किंगडम was great, ये हमने पढ़ा. लेकिन we have not seen Delhi anywhere. दिल्ली हमने यहाँ पे अभी तक कहीं नहीं देखा था, कहीं नहीं पढ़ा था, इसलिए बिकॉज दिल्ली by this time Delhi was not an important city. It was not the city only in the 12th century. It became an important city. इसके पहले दिल्ली नहीं था. इसके पहले 12th century, before 12th century, Delhi was not known to the whole India. अगर इंडिया में अगर एम्पायर्स के बारे में बात करें तो इट वॉज द चोला एम्पायर विच वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर फेमस एंड मोर नोन इन कंपैरिजन टू द दिल्ली. अब यहाँ पे हम आपको एक वी विल बी डिस्कसिंग, आई विल बी शोइंग यू वन बिग टेबल which is talking about the big emperors in Delhi. Emperors का पूरा चार्ट दिया हुआ है. There is one whole chart of the emperors. When we see this chart, we come to know that Delhi सबसे पहले, Delhi became the first time it became the capital of a kingdom under the Tomara Rajputs. Delhi became capital under Tomara, मतलब नाम था, this was the name of the dynasty. Big rulers are there under the Tomara Rajputs. Tomara Rajputs were there. They have established themselves in a very big manner, and लेकिन 12th century में they were defeated by the Chauhans. In 12th century, they were defeated by Chauhans, also called as Chahmanas.
गॉट इट? चौहान्स कहें, चौहमानास कहें, इनके अंडर में ये तोमारा राजपूत जो थे वो हार गए. चहमानास एंड द चहमानास वेयर कॉल्ड एज चहमानास ऑफ अजमेर. इनका राज कहाँ पे था? दे वेयर फ्रॉम अजमेर. अजमेर इज वेरी नियर टू दिल्ली. दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल राजस्थान एंड दिल्ली के बॉर्डर पे अजमेर इज सिचुएटेड. तो अंडर द तोमारास और चौहानास के अंदर में क्या था? दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर. काफी बिजनेस डेवलप्ड. ठीक है, अंडर हिस्ट्री ऑफ दिल्ली समझो, अंडर तोमारास एंड चहमानास, Delhi became a great commercial center. ठीक है, कमर्शियल सेंटर मीन्स जहां बहुत ज्यादा बिजनेस होता था. Lot of business used to happen, and many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. बहुत सारे. यहाँ पे क्या था कि many rich people were there. Okay, बहुत सारे जैन मर्चेंट्स, lot of Jain merchants were there who were living here and constructed several temples. Many Jain merchants, Jain religion, you know, founded by Lord Mahavira. Yes, so many Jain merchants lived in the city and constructed many temples. बहुत सारे टेम्पल्स बनाए इन्होंने. Okay, and now these Jain merchants who were constructing these temples, यहाँ पे बहुत सारे coins भी mint किए इन्होंने. Coins were minted here called the Delhi wall and had a wide circulation. यहाँ के जो coins थे ना, सिक्के बहुत सारे, many coins were minted, बहुत सारे सिक्के बने, and these coins were called as Delhi wall. ठीक है, coins were minted here and these coins were Delhi wall. ठीक है. Now, many people, I'm sorry the spelling is wrong, it is Delhi wall. DEH, Delhi wall. ठीक है. These were the coins. Okay. And transformation of Delhi happened into a capital. कब हुआ? That controlled vast areas, काफी जगह. ठीक है. Transformation of Delhi gradually it became transformation of Delhi happened as a capital city. धीरे धीरे क्या हुआ? दिल्ली बिकेम द कैपिटल. कैपिटल सिटी का बहुत महत्व होता है एंड इट हैज वास्ट एरियाज. काफी जगह तक दिल्ली का कंट्रोल था. इट वाज कंट्रोलिंग वास्ट एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट. एंड इसके बाद दे स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th century. दिल्ली सल्तनत was founded in the beginning of 13th century.
गॉट इट? ये जो 13th सेंचुरी में यहां से दिल्ली सल्तनत का जो चेंजेस हुआ, द वे दिल्ली सल्तनत वॉज चेंजिंग, वी विल अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टेबल. ये टेबल आपको दिखाना बहुत जरूरी है. आई विल बी शोइंग यू दिस टेबल. It is not only important from Delhi Sultan point of view, but from GK point of view also, it's very important. इन्होंने क्या किया? We will find out the first ever dynasty that made the Delhi Sultanate. Delhi Sultanate को सबसे पहले जिन लोगों ने बनाया था, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे. He was कुतुबुद्दीन ऐबक. हम जिनके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, he was कुतुबुद्दीन ऐबक. ओके, ये हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन इन्होंने बहुत सारे एरियाज बनाए. The Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi. Delhi के आसपास के एरियाज में Delhi Sultans built many areas that we know as Delhi today. आज जिस जगह को हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, उसके आसपास में मेनी प्लेसेस आर सिचुएटेड. काफी सारी ऐसी जगह है जो कि इन्हीं सुल्तान्स ने बनाई थी. दीज सुल्तान्स हैव मेड इट. एंड मैप जब देखेंगे हम, जब अभी मैप भी आपको मैं दिखाऊंगी, व्हेन आई विल बी शोइंग यू द मैप, सो विल कम टू नो अबाउट दीज प्लेसेस. दिल्ली की हिस्ट्री कहां से शुरू हो रही है, फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले द फर्स्ट पीपल टू रूल इन दिल्ली एंड ब्रिंग देयर एंड एस्टैब्लिश देयर कैपिटल वेयर द राजपूत डायनास्टीज. राजपूत डायनास्टीज, ठीक है. द फर्स्ट वंस टू बी इन द दिल्ली, दे वर द तोमारास. एंड इन द तोमारास ने सबसे पहले इसको एस्टैब्लिश किया था. तोमारास अभी हमने पढ़ा था, ठीक है. अर्ली 12th सेंचुरी में दे हैव एस्टैब्लिश्ड इट एज अ किंगडम. एंड हु वाज द रूलर? डायनास्टी. द नेम ऑफ द रूलर वाज, प्लीज रिमेंबर, अनंगपाल. ठीक है, अनंगपाल नाम था, जिन्होंने कि यहाँ पे 15 ईयर्स तक रूल किया. He ruled from 1130 to 1145. Please remember the name and please remember the year. It's very important. Okay, इसके बाद अनंगपाल को हराया किसने? The चौहान rulers और the चौहानास जिनको हम कहते हैं. He was defeated by the Chauhans. And Chauhans में who was the ruler? The Chauhan में the ruler was Prithviraj Chauhan. Got it? Prithviraj Chauhan was there. He ruled from 1175 to 1192. 1175 to 1192. काफी दिन तक इन्होंने रूल किया. He ruled for a very long time. And ज्यादातर मतलब जिसके नाम से जाना जाता है उन्हीं राजा के बारे में हम जानते हैं. अब क्या हुआ, ये हिंदू रूलर्स थे. These were from the Hindu dynasties. Now came the Muslim rulers. Now came the Islamic traders, जो यहाँ ट्रेड करने आ रहे थे. उसके बाद इन्होंने यहाँ पे रूल करना शुरू किया. So first we understand about the early Turkish rulers. सबसे पहले जो टर्किश रूलर्स थे उनके बारे में हमको समझना है. They ruled from 1206 to 1290. 1206 to 1290. Now, the first one to there is Kutubuddin Aibak from Kutubuddin Aibak. आपने जरूर इनका नाम सुना होगा. He is the person who was very much fond of doing the construction work. So he is the one who has done the construction work for the first time. And when he has done this construction work,
कुतुब मीनार की शुरुआत इन्होंने की, ऑल्दो ही कुड नॉट कंप्लीट नहीं कर पाए कुतुब मीनार को, लेकिन इनके नाम से ही, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से ही कुतुब मीनार पड़ा। एंड ही रूल्ड इन दिल्ली फ्रॉम 1206 टू 1210। आगे हमको इसके बारे में और पता चलेगा, वी विल बी नोइंग मोर। आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, द अनदर टर्किश रूलर हु वाज देयर वाज शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। ही रूल फ्रॉम 1210 टू 1236, काफी दिन तक इन्होंने रूल किया। नाउ दीज आर द ईयर्स। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप ईयर्स याद करना, लेकिन फिर भी आपको ये ईयर्स इसलिए भी याद करने पड़ेंगे बिकॉज जीके के लिए आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, उसमें यू नीड टू मेंशन अबाउट दीज डेट्स। सो 1210 टू 1236 इल्तुतमिश वाज देयर। इसके बाद इल्तुतमिश की बेटी थी, शी वाज रजिया सुल्ताना। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी फाइंड अ वुमेन रूलर। एक लेडी है जो दिल्ली पर राज करती है, रजिया। शी रूल ओनली, लेकिन ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाई बिकॉज शी वॉज फ्रॉम 1236 टू 1240, ओनली फॉर 4 years. The rulers who were there, द रूलर्स के साथ जो काम कर रहे थे, दे सेड ओहो, एक लेडी हमारे ऊपर रूल करेगी। When we further study the history, we come to know that the people could not tolerate that a woman is ruling over them. एक औरत उनके ऊपर राज करे, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। So Razia had ruled only for 4 years. After Razia came Ghiyasuddin Balban. Ghiyasuddin Balban. And he ruled from 1266 to 1287. 1266 to 1287. Balban was ruling. And once Balban had ruled, once Balban was ruling, he ruled for a long time, and Razia को उन्होंने हटा दिया because I told you that women rulers were not allowed. People did not accept. Allowed की बात नहीं है. A woman has become a ruler. कुछ तो power रहा होगा. Some administrative qualities might be there, due to which Razia became the ruler. लेकिन Ghiyasuddin Balban had removed. After Balban, the another dynasty which ruled in Delhi was Khalji dynasty. You need to know about these rulers. Very lot of work they have done in Delhi. दिल्ली में इन्होंने काफी सारा काम किया। सो जलालुद्दीन खलजी who ruled from 1290 to 1296. जलालुद्दीन खलजी from 1290 to 1296. And then इनका इसके बाद खलजी डायनास्टी में वन ऑफ द वेरी एमिनेंट रूलर्स, जिनको कि आज तक हिस्ट्री में बहुत ज्यादा जाना जाता है फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव measures and for his administrative practices, was Alauddin Khalji. Alauddin Khalji. Alauddin Khalji was there from 1296 to 1316. 1296 to 1316. Okay, they were the Khalji dynasty. Okay, after that came the Tughlaq dynasty. Got it? तुगलक डायनास्टी एंड इट्स आउटकम्स। तुगलक डायनास्टी का सबसे बड़ा रूलर जो था, ही वॉज घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक, he ruled from 1320 to 1324. 1320 to 1324. Okay, and then we have Muhammad Tughlaq, who ruled from 1324 to 1351. Muhammad Tughlaq
who ruled from 1324. Muhammad Tughlaq also ruled for quite a long time, and he made lot of measures, lot of changes in Delhi. दिल्ली के रूल में, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे चेंजेस किए, एंड ही रूल फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, 1324 to 1351. Then another important ruler was फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक कब तक रूल किया इन्होंने? ही हैड रूल्ड फ्रॉम 1351 to 1388. 1351 to 1388. Tughlaq dynasty, Firoz Shah Tughlaq, that is how he had ruled. After that came the Sayyid dynasty. Sayyid dynasty. सईद डायनेस्टी में इन्होंने क्या किया? सईद डायनेस्टी काफी दिन तक इन्होंने रूल किया. दे रूल फ्रॉम 1414 to 1451. 1414 to 1451. लॉन्ग टाइम स्पैन. एंड सईद डायनेस्टी, इसमें जो वैसे तो बहुत सारे रूलर्स थे, लेकिन क्या होता है, वी डू नॉट कम टू नो अबाउट ऑल द रूलर्स. सारे रूलर्स बहुत फेमस नहीं होते हैं. देयर आर सम रूलर्स हु परफॉर्म सच ड्यूटीज, ऐसा कुछ काम करते हैं कि उनके नाम से ही डायनेस्टी जाना जाता है. सो सईद डायनेस्टी में देयर वाज इंपॉर्टेंट रूलर कॉल्ड एज खिज्र खान. खिज्र खान, व्हाट इट? एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1414 to 1421. 1414 to 1421. अब आप कहोगे मैम 21 से 51 तक क्या हो रहा था? यस, 21 से 51 तक द रूलर्स वेर देयर, बट दे हैड नॉट डन सम ग्रेट वर्क, जिनकी वजह से दैट डायनेस्टी कुड बी नोन. देन द लास्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, लोधी डायनेस्टी. लोधी डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश. लोधी डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर वॉज बहलूल लोधी. और बहलूल लोधी ने क्या किया था? 1451 to 1489 he had ruled. 1451 to 1489. Long span of rule was there for the Lodi dynasty. सबसे पहले जिन्होंने रूल किया था that was बहलूल लोधी. All these people, और इनका जितना भी their empire was there, their rule was there, कितने लोगों के साथ बैटल हुआ, कहां पे इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, ऑल दीज थिंग्स वी विल बी नोइंग इन द चैप्टर फर्दर. वेल, टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैप वर्क दैट इज देयर. वो मैप वर्क भी इसमें आपको करना है, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट दिल्ली सुल्तान्स. एंड अगर हम मैप 1 देखेंगे तो उसमें एक जगह हमको मिलेगी विच इज कॉल्ड एज दिल्ली है कोहना. दहली ए कोहना, क्या कहते हैं? दहली ए कोहना. ठीक है. एंड इसमें सीरी है, जहां पनाह है, मतलब जो एम्परर्स थे जिन्होंने ये सिटी बनाई थी, उन्हीं के नाम पे ये दीज प्लेसेस आर नोन. गॉट इट? तो ये मैप दिखाना है आपको. दिस चार्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, दिस चार्ट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो जब हम इन सारी चीजों को समझेंगे तो हमको दिल्ली सल्तनत के बारे में एंड दिल्ली सुल्तान्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा. कम लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स. So students, as you know, today we have started this chapter. This chapter is talking about Delhi and history of Delhi. We should understand about the history of Delhi. मैंने कहा था आपसे कि मैं मैप दिखाऊंगी. ये देखिए, just see the Delhi map and Delhi capital है. यहाँ पे आप देखिए. अब सबसे पहले they are showing the river, Yamuna river. Delhi में there is the Yamuna river. I hope you all are aware of that. The Yamuna river is Delhi. They said यहाँ पे कुतुब मीनार is there and here is Delhi ए कोहना.
Delhi ek Kohana, here is Hauz Sultani, here is Hauz Khas. ये तुगलकाबाद है, आदिलाबाद है. Initially, when the Delhi Sultans have become the kings, they have established and they have made all these places as important, very important places, very important part. And यहाँ पे find फिरोज़ाबाद एंड फिरोज शाह कोटला. फिरोज़ाबाद भी है उसके दिल्ली के पास में, एंड फिरोज शाह कोटला इज़ अ बिग ग्राउंड विच हैव बीन वेरी प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स. तो ये जो सारी जगह हमने देखी, ऑल दीज प्लेसेस दैट वी हैव सीन in the map just now has been constructed and made by the Delhi Sultans. यही हम लोगों को यहाँ पे समझने की ज़रूरत थी. Now important points that we have understood here is Delhi is an important city in the 12th century. Table 1 जब हम देखते हैं तो we find that Delhi is the first capital of a kingdom under the Tomara Rajputs. They were defeated in the middle of the 12th century. defeat किया था तोमाराज और चौहान्स के बारे में हमने पढ़ा. इसके बाद कैपिटल सिटी दिल्ली became under the Delhi Sultans and Delhi Sultanate. टेबल 1 जब हम देखेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा, एंड वी कैन आइडेंटिफाई द 5 डायनास्टीज दैट मेड टुगेदर द दिल्ली सल्तनत. ये देखो, कम ऑन चिल्ड्रन, दिस इज द टेबल दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. इसी टेबल में से दिस जस्ट नाउ वी हैव डन ऑल द रिविजन पार्ट. 1165 में तोमाराज हैव एस्टैब्लिश्ड दिल्ली एज देयर कैपिटल. इसके बाद केम द चौहान्स. They were also very powerful rulers. जिसमें कि one of the most powerful rulers was Prithviraj Chauhan. And early Turkish rulers में we had Kutubuddin Aybak, Shamsuddin Iltutmish, Razia, Ghiyasuddin Balban, 1206 to 1210, 1210 to 1236, 1236 to 1240. ये सारे years, children, yes, you have to remember कुछ जगह एंड कुछ प्लेसेस. वी कम टू नो अबाउट द खलजी डायनास्टी. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं दे आर फ्रॉम द खलजी डायनास्टी, जलालुद्दीन खलजी एंड अलाउद्दीन खलजी. देन वी हैव द तुगलक डायनास्टी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक. गॉट इट? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक. This is what is mentioned here. जहाँ जिस ईयर में इन लोगों ने रूल किया, जिस ईयर में इन लोगों ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, दैट इज़ वेरी क्लियरली मैंशनड हियर. तो ईयर्स थोड़ा सा याद रखना है. इसके बाद वी हैव द सईद डायनास्टी. ठीक है, सईद डायनास्टी इज़ द वन डायनास्टी विच हैड डन लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन दिल्ली. एंड देन बहलूल लोदी के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोदी डायनास्टी के रूलर थे दैट वाज द इब्राहिम लोदी. इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में लड़ाई हुई थी. द बैटल दैट वाज फॉट आफ्टर दैट बाबर एस्टैब्लिश्ड द मुगल एम्पायर एंड मुगल डायनास्टी हियर. दिल्ली सुल्तान्स के बारे में और भी हम लोगों को पढ़ना है. वी नीड टू नो मोर अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट टू यू.